Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to discuss about test and discussion going into a NEETPG examination 5 months down the line. So I got a lot of actually DMs regarding कि sir हम test and discussion अभी join करें या ना करें, what are the pros and the cons. So I thought I'll make a video about this and I thought मेरे views से better है क्योंकि मैंने 3 या 4 साल पहले किया था. आई वॉज लाइक कि मैं अपने एक जूनियर से पूछ लेता हूँ. सो ही इज़ माई वन ऑफ आवर जूनियर्स. ही डिडंट वांट टू गेट नेम्ड ऑन सोशल मीडिया, सो दैट्स फाइन. ही वाज लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई जस्ट आस्क्ड हिम कि एक सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स बता दे अच्छे से, सो दैट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, ही समवन हु इज एक्चुअली यूजिंग इट राइट नाउ. फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव इटसेल्फ यू कैन गेट टू नो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू go for it or not. So the pros are, he said that it's really good for summarizing your short subjects, especially your skin anesthesia, radio and psychiatry. They cover up your previous year questions very well, and जो साथ के questions होते हैं, like you know the question around them, most of the tests and discussions are built around previous year questions. So it's like a good mix of previous year question and questions focusing on concepts of previous year question rather than being random Q bank modules. And the last but definitely not the least कि obviously पूरे के पूरे major subjects नहीं cover होंगे, surgery medicine पूरा नहीं cover होगा, but summarizing के लिए they are nice because they give you flowcharts of particular situations which are actually asked, clinical scenarios which are actually asked in an exam, जो कि थ्योरी नोट जो तुम्हारे नोट्स हैं, प्री मेड नोट्स हैं या रिव्यू बुक्स हैं, उनमें फ्लो चार्ट्स नहीं होंगे ना हाउ टू गो अबाउट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट यहाँ पे बिकॉज दे आर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दे विल गिव यू दोस फ्लो चार्ट, दे विल गिव यू दोस थॉट प्रोसेस दैट माइट कम अप. And another good thing is कि end में revision के लिए obviously like I've told before, revision के लिए they are really good, especially the last 7 to 10 days at revision. That is really important as far as your boosting your rank is concerned. The cons he said was that you know कि जो conceptual subjects बहुत conceptual होते हैं, like biochemistry is a very conceptual subject and रट्टे वाला subject as well. For them, the concepts obviously they are discussing it in test and discussion format. From the beginning to the end, जो concepts वाला part है, if you're wanting a video lecture sort of a thing, कि मेरे को beginning से मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को beginning से तुम पूरा का पूरा समझाओ, वैसा नहीं होता test and discussion. Test and discussion is built on the idea that you have some amount of basal knowledge and you are wanting to perfect it. Right, so that is what test and discussion is all about. So this is his views. He is using DBMCI. So I'll summarize these views in way. मेरे को टेस्ट एंड डिस्कशन बहुत अच्छा क्यों लगा था ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप. लाइक ही सेड कि जो लाइक यू नो मेरे को ये लगा था कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे 7 शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए वो 6 से 8 घंटे की जो टेस्ट एंड डिस्कशन के नोट्स होते हैं ना, दैट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स कवर अप 70 to 80% ऑफ योर क्वेश्चन. इफ यू वांट टू ऐड टू मेक इट कि मेरे को 100% ही स्ट्राइक रेट चाहिए, यू कैन ऑब्वियसली गो टू रिव्यू बुक्स और योर प्री मेड नोट्स एंड ऐड स्टफ फ्रॉम दैट. बट फॉर रिविजन पार्ट की यार ये चीज़ बार बार रिवाइज करनी है एंड दिस यू नो प्रीवियस क्वेश्चन मेरे कवर हो जाएंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली फॉर एज फार एज शॉर्ट सब्जेक्ट्स आर कंसर्न. The second thing I personally liked about a test and discussion was that it gave me a timeline. Okay, एक हफ्ता है, मेरे को इस एक हफ्ते में बायोकेम खत्म करनी है. Okay, 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्ते में मेरे को अपनी पैथोलॉजी खत्म करनी है. So although वो इंटर्नशिप का था, it was a broad timeline. अभी फास्ट एंड ट्रैक टेस्ट एंड डिस्कशंस होंगे ऑफ भाटिया एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. तो उनके टाइमलाइन के हिसाब से यू कैन एक्चुअली गेट एन आइडिया कि इस हफ्ते में को इतना खत्म करना है, इसमें इतना खत्म करना है, एंड दिस विल get you into the speed कि यार इतने टाइम में मेरे को अपना सिलेबस खत्म करना है, so that I have this much time available for revision as well. So that thing is always there. The third thing that he also talked about कि जो मोटे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं उनको समराइजिंग के लिए फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं. And last but definitely not the least, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही यार. You have to practice MCQs in order to ace this MCQ exam. The cons, basically the biggest cons I feel is that there is like you know इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्लेटफॉर्म कि ये मेरे को एकदम पूरा का पूरा ना समझाएगा कि फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, कि मेरे को पूरी बायोकेमिस्ट्री ढंग से पढ़ाएगा फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड इन अ प्रॉपर टाइमलाइन मैनर, वैसा नहीं होता. सो अगर लेट्स से दे आर टीचिंग यू बायोकेमिस्ट्री टेस्ट एंड डिस्कशन, इफ लेट्स से बायोकेमिस्ट्री टेस्ट एंड डिस्कशन इज देयर और सम XYZ टेस्ट एंड डिस्कशन इज देयर, तो दे विल टीच यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट. बट वो एक प्रॉपर फ्लो जो तुम चाहते हो, अगर इफ़ यू एक्सपेक्ट ना कि मेरे को डे 1 पे प्रोटीन पढ़ाए, डे 2 पे मेटाबॉलिज्म पढ़ाए, फिर डे 3 पे DNA पढ़ाए, हो सकता है वैसा ना हो बिकॉज क्वेश्चन ऑब्वियसली विल बी जम्बल्ड अप. मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स विल स्टिल बी कवर्ड थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, बट यू नो एकदम 0 to 100 नहीं होगा. टेस्ट एंड डिस्कशन इज बिल्ट ऑन द प्रेमिस दैट यू हैव अ नॉलेज, बेसलाइन नॉलेज. मेरी 50-60% नॉलेज है, मैं उसको पढ़ूंगा और आई एक्सप्लोर इट मोर एंड देन आई अटेम्प्ट अ टेस्ट. Then I'll get to know what my lacunas are and I'll get to know what my concepts are, and I have in the end I'll have a summary and a set of notes which then I can easily revise later on again and again. That is the premise of test and discussion. The con obviously one is the concepts कि एकदम वो
The second is independence, because there are a lot of individuals which will feel like I want to do it this way, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को इस हफ्ते ये पढ़ना है, इसको हफ्ते पढ़ना है. Test and discussion sort of limits that कि okay, this week you are going to do this only. And last but definitely not the least, cost. Obviously anything is like, you know, if you buy anything, it's going to cost you something. If you don't have the money for it, if you're something, you know, if you already have bought an app, and that, like, most importantly, if you're something, if something is going good for you in your preparation, I'll tell you right now, don't be in FOMO just because I'm making this video. Don't be in a fear of missing out. If you think something is going well for your preparation, कि तुम XYZ app को use करके भी टीरू गुरुकुल डाम्स मारो बाटिया whatever it is, तुम इसको पर से यूज़ करके तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, यू आर गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स, तुम्हारी देयर इज अ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, यू गेटिंग कॉन्फिडेंस, देन जस्ट डोंट बी इन फोमो कि आदित्य सर ने बोला तो ये करना है. ठीक है, दिस इज फॉर समवन हु स्टार्टिंग राइट नाउ और हु इज कंफ्यूज कि ही थॉट दैट दिस विल बी हेल्पफुल बट इज इन अ टू वे कि मैं ये लूँ या ना लूँ. अब लेना क्या है, दैट वे एज फार एज दैट इज कंसर्न, आई विल से भाटिया इज ऑब्वियसली अ बिट बेटर. मेरे को बहुत कंसेप्चुअल लगा था भाटिया. फाउंड इट मच बेटर फॉर INI एग्जामिनेशन, फाउंड इट मच बेटर फॉर, यू नो, अब नीट भी बिकॉज इट हैज बिकम क्लिनिकल. ऑब्वियसली नाउ इट इज बोथ द वे, बिकॉज अर्लियर व्हाट द ट्रेंड वाज कि ये इसके लिए बेटर है, इसके लिए बेटर. नाउ आई फील भाटिया का TND समथिंग विच एवरीवन इन एम्स डज एंड अप रिकमेंडिंग. एंड देन देयर वाज, आई विल ऑलवेज से दिस ऑब्वियस कि मेरा एक पर्सनल बायस भाटिया के अगेंस्ट हिस्ट्री है, बिकॉज भाटिया के वो टीचर्स जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे, स्पेशली एनाटमी, अश्विनी सर इज सो ग्रेट कि मेरे को लगा था कि ये एटलीस्ट जो मेरा वीक है वो चीज़ अच्छे से कवर हो रही है. Like, I understand that there may be some teachers there also which were not that great, but it didn't matter to me because वो मेरे strong subjects थे. And मेरे weak subjects, especially anatomy के teachers बहुत अच्छे थे in DBMCI. So that's the reason मेरे को भाटिया थोड़ा सा better लगा था. So these are the pros and cons of a test and discussion that I wanted to tell you. So if you're thinking of going into a fast track test and discussion, going into a, be it DAMS or be it Bhatia for that matter, again personal bias a bit towards Bhatia, but yeah, be it whatever it is, these are the pros and cons कि तुम्हें एक टाइमलाइन मिलती रहेगी कि यू नो कि हाँ इस एक हफ्ते में भाटिया में ये पढ़ा दिया जाएगा, अनाटमी अश्विनी सर खत्म कर देंगे, तो मैं खुद एक हफ्ते में अनाटमी पढ़ लेता हूँ, फिर अश्विनी सर विल टीच मी द कंसेप्ट्स ऑफ दोज क्वेश्चन, विल गेट मी अ सेट ऑफ नोट्स विच देन आई कैन अगेन रिवाइज एंड अगेन एंड अगेन अगेन. या इस हफ्ते थमीम सर मेरी मेडिसिन पढ़ा देंगे, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग लाइक, यू नो, इस हफ्ते मेरी मेडिसिन मेरे को खत्म करा देंगे, या जय सर मेरी सर्जरी खत्म करा देंगे, तो मेरे को एक फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे. डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली इफ यू वांट कि एकदम जीरो से तुम 100 पे आना चाहते हो, तुम्हें कोई भी जीरो आइडिया नहीं है, तुम लोग, यू नो, तो then obviously a video lecture form of thing probably would be better for you. Test and discussion is obviously based on the idea, like basal knowledge 20-30, not 20-30 but 40-50% तुम्हारी knowledge है, and you want a timeline कितने टाइम में ये होता रहे और मेरे को एक set of notes मिलते रहे, उसके लिए test and discussion बहुत अच्छा रहता है. So this is how I'll end the video. Last but definitely not the least, don't be in FOMO. पर अगर लेने का मन है, then I'll say maybe Bhatia is a bit better. That's about it. Thank you and have a nice day.